Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. First of all students, you subscribe to my channel. Okay. Today in this video I will teach you chapter 2 in prose from class 12th. The chapter name is A Fellow Traveler. It was written by A.G. Gardner. It is the part 1 of this chapter. Okay, first of all we see about the author. A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. क्या A.G. Gardner, a distinguished means होता है सक्सेसफुल एंड ग्रेटली रेस्पेक्टफुल. ओके, तो A.G. गार्नर एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार थे एंड एन एमिनेंट एसे राइटर. एमिनेंट मीन्स वेरी फेमस and he was very famous essay writer. He was born in 1865. As a journalist, पत्रकार के रूप में, he worked and edited the Daily News for 17 years in London. In this line, it has been told that as a journalist, A.G. Gardner worked and edited the Daily News till 17 years in London. He wrote several volumes of this essay under the pen name of Alpha of the Plough. ये पेन नेम है अल्फा ऑफ द प्लो यानी कि इस टाइटल के तहत. ओके स्टूडेंट्स, जो लिखा है अल्फा ऑफ द प्लो, इस टाइटल के अंतर्गत A.G. गार्डनर ने बहुत सारे एसेज के वॉल्यूम्स में संस्करण लिखे. ओके, His prominent works are, prominent means main यानी कि प्रधान. His prominent works are Priest and Kings, Pebbles on the Shore and Leaves in Wind. These are the names of his works. He died in 1946 but he will be remembered forever through his unique writings. इसका मतलब है he died in 1946 कि 1946 में उनकी मृत्यु हुई. बट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर माने हमेशा, लेकिन वे हमेशा याद किए जाएंगे थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, अपने अद्वितीय लेखों के माध्यम से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द अबाउट द लेसन. द लेसन अ फेलो ट्रैवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड. लीव्स इन विंड A.G. गार्डनर का मेन वर्क है. ओके, उसी से इस चैप्टर को अ फेलो ट्रैवलर लिया गया है. इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल एसे. ये पर्सनल एसे यानी कि एक व्यक्तिगत निबंध का एक बहुत ही अच्छा नमूना है. फाइन मीन्स अच्छा, स्पेसिमेन मीन्स नमूना. The author here describes how he develops a feeling of affection for a mosquito, regarding him as a fellow traveler and a fellow mortal. क्या the author here describes? Here मतलब in this essay the author described that how he develops a feeling of affection, कि किस तरीके से वो affection यानी कि एक प्रेम की भावना को एक मच्छर के प्रति अपने हृदय में डेवलप करता है. रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रैवलर एंड अ फेलो मॉर्टल, और उसको क्या समझकर अपने दिल में अफेक्शन की फीलिंग्स को डेवलप करता है, उसे एक फेलो ट्रैवलर समझता है यानी कि अपना साथी समझता है और उसे एक फेलो मॉर्टल समझता है. ओके, now the chapter start. I do not know which of us got into the carriage first. I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train. An infinitely leisurely train. One of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone.
First of all, students, see the difficult meaning of this paragraph. The first word is carriage. Okay, it is written here. दिस कैरेज मीन्स होता है कोच, यानी कि रेलगाड़ी का डिब्बा. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज एटर्निटी. एटर्निटी मीन्स इनफिनिट टाइम. ओके. एटर्निटी मीन्स इनफिनिट टाइम. एंड द नेक्स्ट इज एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन. इसका मतलब क्या है? अ ट्रेन मूविंग एट अ वेरी स्लो पेस. पेस माने चाल, कि ऐसी ट्रेन जो बहुत ही लेजरली, लेजरली का मतलब यहाँ पे क्या है? स्लो, कि बहुत ही धीमे धीमे जो चलती है, आराम से चलती है. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज सब अर्बन. इट इज रिटन हेयर सब अर्बन. सब अर्बन मीन्स होता है आउटलाइंग एरियाज ऑफ अ बिग टाउन. यानी बिग टाउन यानी कि शहर के आसपास वाले जो एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको कहते हैं सब अर्बन. ओके. द नेक्स्ट इन वंस एंड टूज, यानी कि एक एक दो दो करके. ओके. इन वंस एंड टूज. ओके. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरियज फर्स्ट. इस लाइन में राइटर क्या कर रहा है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ. विच ऑफ अस, कि हम में से कौन. गॉट इन टू द कैरियज फर्स्ट, कि पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में कौन चढ़ा. आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम. इन दिस लाइन द राइटर इज सेइंग दैट इंडीड, इंडीड मीन्स रियल, इन रियल आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम. कि मुझे ज़रा सा भी नहीं पता है कि वह डिब्बे में है. मतलब बहुत देर तक राइटर ये जान नहीं पाया कि ऑलरेडी जो है मॉस्किटो डिब्बे में है. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन. और ये लंदन से मिडलैंड चलने वाली मिडलैंड नगर के लिए चलने वाली यह लास्ट ट्रेन थी, अंतिम ट्रेन थी. अ स्टॉपिंग रेन, यानी कि हर स्टेशन पर रुक रुक कर चलने वाली. एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, और अत्यधिक धीमी चाल से चलने वाली. वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी. और यह उन गाड़ियों में से एक थी. वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन गाड़ियों में से एक थी. विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, कि जो आपको अनंत का बोध कराती है. अनंत का मतलब बिल्कुल कि चलती ही चली जा रही है, कहीं भी उसका स्टॉप होने का मतलब जो उसका टारगेट है वो कहीं पर आएगा ही नहीं. वो बिल्कुल बस ट्रेन चलती ही जा रही है, अनंत चाल में धीमी गति से चलती ही जा रही है अनंत की ओर. ओके. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड. टॉलरेबली फुल मतलब ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी जब ये स्टार्ट हुई थी, रवाना हुई थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से लगे हुए देहात के स्टेशनों पर रुकते गए. सब अर्बन स्टेशंस यानी कि देहात के जो स्टेशंस थे, शहर से लगे हुए जो एरियाज थे, है ना, वो देहात क्षेत्र ही होते हैं. द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज. और जो यात्री थे वो एक एक और दो दो करके, अलाइटेड मतलब उतरते गए. एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड. और तब तक हम लोगों ने लंदन का जो बाहरी घेरा था, यानी कि लंदन का जो सबसे आउटर एरिया था, सबसे लास्ट जो छोर था, उसको पीछे छोड़ दिया. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या ये समझिए कि मैंने सोचा कि मैं अकेला था. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Okay, now see this paragraph. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. It is bitterly and unrestrained in a very agreeable
form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step or practice of golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lie at full length of the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself. Only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even Dora. Okay, students, first of all, see the difficult meaning of this paragraph. The first word is pleasant. Pleasant means agreeable, यानी कि प्रसन्न करने वाली या आनंदमयी. द नेक्स्ट वर्ड इज जॉल्टिंग. जॉल्टिंग माने गिविंग जर्क्स, यानी कि झटका देते हुए, है ना. जैसे ट्रेन होती है ना, झटका दे दे के चलती है. जर्क, जर्क मीन्स झटके. द नेक्स्ट वर्ड इज अनरेस्ट्रेंट. अनरेस्ट्रेंट मीन्स फुल फ्रीडम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. बगैर किसी रोक टोक के पूर्ण स्वतंत्रता को अनरेस्ट्रेंट कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिम्फेंटली. इट इज रिटन हियर. ट्रिम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली, यानी कि विजयपूर्वक. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्गूमेंट. आर्गूमेंट मैंने रीजनिंग, यानी कि तर्क वितर्क करना, है ना, बहस करना. द नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर स्ट्रोक. काउंटर स्ट्रोक दिस. काउंटर स्ट्रोक मीन्स अटैक इन रिप्लाई, यानी कि किसी ने हमें कुछ कहा तो उसके रिप्लाई में, उसके उत्तर में जो बोला जाता है, जिसे जैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना. अटैक इन रिप्लाई. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेस्ट. ओके, प्रोटेस्ट मीन्स डिसअप्रूवल. इट इज रिटन दिस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलेशंस. रेगुलेशंस मीन्स होता है रूल्स, यानी कि नियम. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज DORA. इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डिफेंस ऑफ द रिलीम एक्ट. ओके, D से द डिफेंस, O से ऑफ, R से रिलीम, A से एक्ट, यानी कि राज्य के सुरक्षा नियम. Okay, students, now see, there is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. In this line, the author points out here that he liked being alone in the compartment of a train. कि ऑथर क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि वो कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहना चाहता है. ओके, which was jolting noisily through the night. और क्या कर रहा है कि वो उस गाड़ी में अकेला रहना चाहता है. which was jolting noisily through the night, जो रात भर धीरे धीरे झटके खाकर चलती जा रही है. क्या? ट्रेन. It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. In this line, it is because, राइटर क्या कर रहा है? It is because, कि ऐसा इसलिए है. He was free to do whatever he liked and there was none to check him. क्या वो कह रहा है कि it is because, इसलिए he was free to do whatever he liked, कि he was free, वह बिल्कुल स्वतंत्र है. To do whatever he liked. Understand बने कि बगैर रोक टोक के, कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, कुछ भी वो कर सकता है. Whatever he liked and there was none to check him.
कि कोई भी उसको वहाँ पे रोक टोक करने वाला नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। अब राइटर इसमें क्या कर रहा है कि ही कैन डू इन दैट कंपार्टमेंट वॉट ही लाइक, कि जो भी उसे पसंद है वो कुछ भी उस डिब्बे में कर सकता है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हेयर यू। अब इसमें क्या कर रहा है राइटर कि आप उस डिब्बे में जब आप अकेले हो, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला ना हो, तो क्या यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। योर सेल्फ मैंने खुद से, कि आप अपने आप से बात कर सकते हो एज लाउड एज यू प्लीज़, कि जितनी तेज़ आवाज़ में बात करना हो आप उतनी तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हेयर यू, वहाँ पर कोई भी आपको सुनने वाला भी नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust without fear of counter stroke। और क्या कह रहा है, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, और आप बहस भी कर सकते हो, आर्गूमेंट भी कर सकते हो आउट विद जोन्स। यहाँ पर जोन्स क्या है, एक ये इमेजिनरी मैन है, ओके। ये कोई राइटर या पोइट का नेम नहीं है, ना ही कोई ये फेमस पर्सनालिटी है। ये राइटर ने यहाँ पे इमेजिनरी मैन है, ऐसे ही कल्पना करके मतलब बता रहा है कि किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे राइटर ने जोन्स बता दिया, ओके। कि आप यहाँ पर आप उस समय जॉन से भी बात कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली, और उसको विजयपूर्वक इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, ओके। तो काउंटर स्ट्रोक माने क्या होता है, अटैक इन रिप्लाई, कि उसको जब आप उसे फाइट करो तो जो काउंटर स्ट्रोक करो, जो उसको घूंसा मारो, या अगर वो आपको मारे तो उसके आंसर में जो आप प्रतिक्रिया करो, काउंटर स्ट्रोक करो, तो उसको विजयपूर्वक वहीं पर धूल में गिरा भी सकते हो, ओके। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, और तुम अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, वहाँ पर आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस अ 2 स्टेप, आप 1-2 कदम डांस भी कर सकते हो। यू कैन सिंग, आप गा भी सकते हो, और डांस अ 2 स्टेप, और 1-2 कदम आप डांस भी कर सकते हो। अब प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ क्या है, एक गेम है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और मार्बल्स माने कंचे जो होते हैं, कंचे की गोलियाँ, आप यहाँ फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस माने बाधा, बगैर किसी बाधा के, ओके। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। इन दिस लाइन the author felt a pleasant sense of freedom, okay, about being alone in a compartment of the passenger train, कि वो उस पैसेंजर ट्रेन में असीम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, ओके। इट वॉज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म, और जो उसकी लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो बहुत ही प्लीजेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है। तो वो राइटर इसमें क्या कह रहा है, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यानी कि ही वॉज फ्री टू डू एनीथिंग ही लाइक्ड। ही कुड टॉक टू हिमसेल्फ वेरी लाउडली, ही कुड आर्ग्यू आउट विद एन इमेजिनरी पर्सन, ओके, एंड ही कुड आल्सो ओपन द विंडो और शट इट, कि वो खिड़की को भी खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. Okay? ये चीज़ इसमें कहा गया है कि तुम चाहे तो स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए खिड़की को बंद भी कर सकते हो और लगातार खोलते भी रह सकते हो। You can have any corner you choose and try all of them in turn. इसमें क्या कह रहा है? Indeed, he could go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom, कि इसी को आप किसी तरीके का एक खेल समझकर भी इसको लगातार ओपन भी करते रह सकते हो और
बंद भी करते रह सकते हो। ओके, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑफ द कुशंस एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है राइटर, ही कुड लाई, कि आप लेट भी सकते हो, एट फुल लेंथ मतलब पूरी तरीके से पूरे पैर फैलाकर लेट भी सकते हो, एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ वॉयलेटिंग द ऑर्डिनेंस, DORA। ओके, और क्या कर रहा है इसमें राइटर, कि आप वहाँ पर बगैर किसी औपचारिकता के जो कुशन्स हैं, गद्दे हैं, उन पर लेट कर शयन कर सकते हो। ओके, और ब्रिटिश अधिनियम, डोरा क्या है आपको भी मैंने बताया, द डिफेंस ऑफ रिलीफ एक्ट है ना, राज्य के सुरक्षा नियम। तो ये जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो अधिनियम है डोरा, डोरा जो शॉर्ट फॉर्म है, तो डोरा का उल्लंघन करने का लुफ्त भी उठा सकते हो। क्या लिखा है, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, हार्ट इज ब्रोकन ये किसके लिए कहा गया है, डोरा के लिए, कि आप डोरा के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और आप तब भी डोरा से बच जाओगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Okay, today's for that's it. Like, share, comment and subscribe to my channel. Okay, thanks for watching.